So I'm going to start your very first class in advanced calculus, and first unit is based on partial derivatives. Chapter number 14. I have already shared you your this soft copy of the book. So let me open the whiteboard. Just a minute. So partial derivative concepts, there are several functions which depend on more than one variable, है ना? For example, volume. If you want to find a सर volume, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा ना अभी सर, आएगा व्हाइट अभी। बोर्ड नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम ले रहा है यार, आज कुछ प्रॉब्लम है, अभी आ रहा है। अभी मेरा ओपन नहीं हुआ है व्हाइट बोर्ड। So several things depends on more than one variables, है ना? For example, a volume. If you want to find a volume of any body, you need like volume of a cylinder. So volume of a cylinder is what? Pi. आर स्क्वायर एच। Yes. So you know that volume of a cylinder is depends on R and H, है ना? Radius पे और height पे. So here it is depending on two variables. So it is a function of two variables. Dependent variables तो one है यहाँ पे volume, और किस पे डिपेंड कर रहा है? R पर और H पे. So R and H, they are independent variables, है ना? So function of several variables means we will be studying when you have more than one independent variables. Dependent variables तो आपका एक ही है, but you have two independent variables. Okay. So these type of function we can study in this function of several variables. So I will be concentrating on function of two variables, three variables, and so on. So we will define in general. The whiteboard is visible? No. No, sir, your screen is visible. Now? Yes, sir, now it's visible. Yes, good. So your this first chapter number 14. अब नेट सही नहीं है यार, बिल्कुल लग रहा है ऐसा कुछ चल ही नहीं। यस, chapter 14, partial derivatives. Because when you have function of more than one variable, so you have a concept of partial derivatives. Partial derivatives. So we will be taking first is function of several variables. Function of several variables. This is your very first topic. So as I told you, function of several variables means what? Your domain. And whenever you define a function, you have one domain and you have one codomain. Suppose it is your codomain. Suppose here it is taking some Rn ले लें अगर, है ना? And suppose because I am taking a real valued function, so I will be taking d2r. Real valued means images is real. So how I will be defining? Suppose if I am taking function of n in general, so I can take Rn2r. So it is a function of n variables. So domain में I will write how many elements I can write. Suppose I can write some x1, x2, xn. क्योंकि n वेरिएबल्स है तो हमने x1, x2 ले लिया। अगर R2 लेते हैं तो आप x, y भी लिख सकते हो, fx, y। 3 में you can write x, y, z, but Rn है तो जनरल नोटेशन I will be using x1, x2, xn. तो इस तरीके से अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें from Rn to R,
Okay, so here this you can see that this is a function whose domain has n variables, and it's a real valued function because its codomain, its range is R. So you can see that here this is a domain. तो ये जो function आपका बन रहा है ये है ना, इसको अगर I am denoting by suppose W, so W is some function f x1 x2 xn. So this is the set of domain is the set of n tuples of real number. x1 x2 क्या है, ये real numbers. तो डोमेन क्या हो गया आपका, सेट ऑफ एन टपल्स. हम टपल्स वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, है ना. 2 के लिए पेयर्स, 3 के लिए ट्रिपलेट्स, एंड मोर देन 3 है तो आई कैन सेट एन टपल्स. so here you have n tuples, and this is a real valued function whose जिसकी इमेज r होती है वो रियल वैल्यूड फंक्शंस कहलाते हैं. अगर कॉम्प्लेक्स होती है तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, वेक्टर होती है तो वेक्टर वैल्यूड. so it's a real valued function. it's a real valued function whose domain has n tuples, है ना. image is real. So the set D is the function. This is domain, you know. This is called domain. And जो values निकल कर आएंगी इसकी, that is a range. This will be give you the range. जो हम यहाँ पे value put करेंगे, this value is coming. So this is called the range. You can say the values taken by this. W जो value आया, it is range. The image of these things, है ना. So here you can see W is, मैंने इसे W से डिनोट कर दिया, W is equal to f of this. तो W कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना. W is डिपेंडेंट वेरिएबल. कुछ बच्चों का ज्वाइन नहीं हो पा रहा यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. And these x1 x2 xn they are independent variables. Independent variable. Independent variable. Short I can write this is your DV, independent variable. This is independent variable. The function of several variables means क्या होगा, when you have more than one independent variable. ठीक है, dependent variable तो एक ही है यहाँ पे, but you have more than one independent variable. जैसे मैंने वॉल्यूम बताया कि अगर हम वॉल्यूम को लिखें पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम को आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू आर कॉमा एच. तो इट्स अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग सम w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, w हमारा 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है. मान लो इससे मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. Here your this is a function of 3 variables x, y, z. These are the independent variables and w is dependent on this. Okay, so this is the concept of this function of several variables, real valued function of several variables. You can define it in different ways and I can find the values. यहाँ पर f x y z था, तो if I want to find f111 f111, so f111 will be 3. This will be the values. Okay, so here what I am taking, I am taking the images of the function from domain to real. अब वो images अगर आपके 2 variables में हैं तो images R2 से आ रही होंगी, अगर 3 variables हैं तो images from will be coming from R3. तो graphically आप देखें, अगर R3 से आ रही है तो you will be having 3 coordinates f x y z. So your f will be taking, if I am taking O x y z, so what f is doing, f just taking any point from this, कोई पॉइंट यहाँ से लेके जा रहा है x y z को, और कहाँ पे मैप कर रहा है, एक रियल लाइन पे, है ना. रियल का मतलब होता है आर से मतलब क्या, आई कैन टेक अ रियल लाइन. यहाँ पे इसको मैप कर रहा है, इमेज सम इट इज कमिंग हियर सम एफ एक्स वाई जेड. अब वो इमेज क्या होगी, डिपेंड करेगा आपने पॉइंट क्या दिया. जैसे फॉर पर्टिकुलर हियर आई टुक 111, तो f111 इज 3, तो 3 यहाँ मैप हो जाएगा. अगर मैं 11 पॉइंट ले लूँ इट विल बी 3. जैसे आप पॉइंट्स लेंगे इट विल बी कमिंग इन दिस रियल लाइन. ये आपका स्केलर है.
है ना. So here you have domain, here you have range. So अगर you will define one example, example 1, you can see domain and range you can find if your function is given to you. Suppose I am writing some function and I am writing its domain. Domain क्या होता है? Where your function is defined, and range is its image. So for example, I am taking a function z is equal to under root y minus x square. ये फंक्शन कितने वेरिएबल का फंक्शन है? Yes. How many variables? Two variables का. Very good. It's a function of two variables. Z is dependent variable, yx independent variable. Anybody can tell me what is the domain of this function? Where it will be defined? So y greater than x square. Can't I take equal to? x square. हाँ, equal to भी ले सकते हैं ना, है ना? Yes, sir. Yes sir. हाँ, क्योंकि अगर यही मैं फ्रैक्शन में लिख देता तो इक्वल टू नहीं लेते हम. अगर ये 1 अपॉन होता तो आई विल टेक ओनली y ग्रेटर देन, है ना, बिकॉज यू नो स्क्वायर रूट थिंग्स आर डिफाइंड ओनली व्हेन दिस पार्ट इज रियल. तो ये रियल कब होगा? रियल मतलब सॉरी, रियल मींस नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी, व्हेनेवर इट इज पॉजिटिव, है ना. तो पॉजिटिव कब होगा? जब y ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर हो, बिकॉज 0 आई कैन आल्सो टेक, 0 इज आल्सो अ डिफाइंड हियर बिकॉज इट इज नॉट अ फ्रैक्शन. लेकिन अगर मैं 1 अपॉन करता तो फिर यहाँ पर आपके पास डोमेन सिर्फ ग्रेटर देन हो जाता, है ना. सो हियर दिस इज द डोमेन. व्हाट अबाउट रेंज? इसकी रेंज क्या होगी? पॉजिटिव सर, प्लस आर, है ऑल प्लस पॉजिटिव या सर, पॉजिटिव में 0 नहीं आता है? 0 नहीं हो सकता क्या कभी? ये जीरो भी सर, जीरो इंक्लूड. 0 कॉमा Whole number, इंफिनिटी, है ना. तो इसे 0 को अगर आप ले रहे हैं तो यू से इट ऑल नॉन नेगेटिव नंबर. इसे हम ये कह सकते हैं नॉन नेगेटिव. ठीक है, ओके भाई. पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? इफ यू हैव x ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव. लेकिन इफ आई एम टेकिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो आई कैन टेक जीरो आल्सो. नॉन नेगेटिव, Negative. है ना. नॉन नेगेटिव इसे लिख देंगे हम, नॉन के आगे ये जोड़ा हुआ इससे. ऐसे ही पॉजिटिव उसमें होता है. इफ x लेस देन 0 इसका मतलब है नेगेटिव. लेकिन अगर आप कह रहे हैं x लेस देन इक्वल टू 0 तो आई विल से नॉन पॉजिटिव. है ना. ये फर्क है. तो जब आप 0 इंक्लूड कर लेंगे तो आप, क्योंकि 0 आ गया तो नेगेटिव भी है लेकिन 0 भी है, तो आई विल से नॉन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं 0 से बड़े. ठीक है, ये फर्क है. तो इसमें 0 इंक्लूड होता है. तो रेंज इसकी हो गई ऑल नॉन नेगेटिव नंबर. ठीक है. ऐसे ही दूसरा फंक्शन लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन एक्स वाई. ठीक है, इट्स आल्सो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. इट इज इजीली विजिबल. एक्स और वाई डिपेंड इंडिपेंडेंट है, जेड डिपेंडेंट. इसका डोमेन बताइए क्या होगा? आर माइनस जीरो, X y greater than 0. माइनस So x, Domain, y not domain. equal to माइनस greater than 0. क्या? So x y greater than 0. एक्स So प्रोडक्ट x, करें, y not equal to 0. नॉट इक्वल टू 0. Yes sir. भाई ग्रेटर क्या? ये तो एक्स वाई में कुछ भी ले सकता हूँ ना. यहाँ पे देखो, एक्स को मैं कुछ भी ले सकता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, वाई को कुछ भी ले सकता हूँ, बट आई कैन नॉट टेक एक्स वाई 0. यानी कि प्रोडक्ट 0 कभी नहीं होना चाहिए बस. उसके अलावा डोमेन में तो हम कुछ भी ले रहे हैं, इट विल ऑलवेज डिफाइन, है ना. तो प्रोडक्ट नॉट yes, 0 का sir. मतलब यही है कि ना तो x 0 हो ना y 0 हो. तो हमने ये लिख दिया प्रोडक्ट नॉट 0. इसके अलावा आई कैन, डोमेन का मतलब क्या? वेयर दिस थिंग इज डिफाइंड. सो आई कैन टेक एक्स वाई नॉन 0. आई कैन टेक एनी वैल्यू बट एक्स वाई कैन नॉट बी 0, बिकॉज ये फ्रैक्शन में देखो. इसीलिए अगर फ्रैक्शन की जगह सिर्फ ये होता है, ये अगर सिर्फ मैं ये लिखता मान लो z इज इक्वल टू एक्स वाई, तो डोमेन क्या होता है इसका? रियल सर, आर ऑल रियल, है ना. एनी वैल्यू, यानी कि यू कैन से होल एक्स वाई प्लेन, क्योंकि आप x को कुछ ले सकते हो, y को कुछ भी ले सकते हो, है ना. तो डोमेन क्या कहता है? मैं R2 कंप्लीट R2, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में है. बट बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन, तो डोमेन क्या? कंप्लीट R2 ओनली एक्स वाई नॉट 0. यानी कि हमें एक्स वाई नॉट 0 हटा देना. यानी कि अगर आप ग्राफ में सोचेंगे तो ग्राफ में हमें क्या हटा देनी है?
एक्स एक्सिस हटा देना है पूरा और वाई एक्सिस हटा देना है, तो ओरिजिन तो हट ही जाएगा अपने आप, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा। उसके अलावा आप कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे हमेशा डिफाइन होगा, है ना, ग्राफिकली अच्छे समझ सकते हैं, इजी है। अब रेंज बताओ इसकी मुझे, रेंज क्या हो सकती है इसकी, व्हाट इज द रेंज? माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इंफिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी। यस सर। क्या जीरो X से होगा? plus जीरो पे zero। नहीं होगी, जीरो बट सर नहीं जीरो होगी, नहीं। है ना, रियल नंबर माइनस एक्स Zero नहीं नहीं होगी। इसमें जीरो। जीरो आ गया आपके पास, हाँ, तो इसमें जीरो आपको एक्सक्लूड करना है, तो इट विल बी, माइनस कर देंगे तो। हाँ इसे अब ऐसे अगर लिख, या तो इसे ऐसे लिख दो, है ना, इसका मतलब क्या, जीरो एक्सक्लूड, या ऐसे लिख सकते हैं आप कि हो ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, या ऐसे लिख दो जैसे Yes. आपके माइनस इन्फिनिटी से जीरो और यूनियन जीरो कॉमा इन्फिनिटी, Plus infinity. इन्फिनिटी। कोई सा भी तरीके से आप लिख सकते हैं, बस जीरो नहीं होगा हमें दिख रहा है क्योंकि टेंड टू जीरो करेगा, when xy will be very large this z will be tending to zero but will not attend the zero, है ना, ये लिमिट होती है, कैलकुलस में पढ़ा आपने, तो अटेंड नहीं करेगा टेंड करेगा, तो इसलिए हम जीरो को ओपन उस पर रखेंगे, ठीक है। एक और फंक्शन है आपका z इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक, साइन का फंक्शन आ गया, तो साइन पहले तो डोमेन बताइए, एक्स वाई की मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर, -1 माइनस -π/2 to π/2। क्यों, और उसके अलावा कुछ और रखूंगा तो डिफाइन नहीं होगा क्या ये? Real sir. भाई डिफाइन तो सब जगह है ना, इस एक्स वाई को आई कैन चूज एनी वैल्यू, कुछ भी लिख लो आप, तो होल R2, है ना, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, एनी वैल्यू आई कैन गिव टू दिस, Yes sir. है ना, कितनी भी बड़ी वैल्यू रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, हमेशा डिफाइन होगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, R2 कुछ भी रख दीजिए आप, तो आई कैन से होल R2, क्योंकि एक्स को कुछ भी रख सकते हैं, वाई को कुछ भी। रेंज क्या होगी, साइन की रेंज जो है आपको मालूम है कि साइन तो आपका ग्राफ बनाएंगे हमेशा Minus one. ऑसिलेट Plus करता है, plus. है ना, नहीं माइनस Minus one. 1 से 1, 1 to 1। 1 to 1 आता है ना, 1. जब आप साइन का ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से आता है साइन का ग्राफ, ये होता है साइन एक्स का। अब साइन एक्स वाई में जब आप बनाएंगे तो आप पुट करना शुरू करेंगे वैल्यू, तो कितना भी जाएगा यहाँ पर ये आपके पास हमेशा क्या रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा -1 से 1 के बीच, इससे बड़ा तो निकल नहीं सकता, क्योंकि आप एक्स वाई को कितना भी बड़ा वैल्यू दे दें, जब साइन उस पर लगेगा तो उसको वो प्रोजेक्ट कर देगा इसी के बीच पे कहीं पे, है ना, कुछ भी वैल्यू रख दीजिए आप, क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी है साइन लाइज बिटवीन -1 टू +1, तो रेंज हमेशा यही रहेगी इसकी, ओके। ये 3 फंक्शंस थे, डोमेन रेंज, ऐसे और बहुत सारे फंक्शन यू कैन सी इन एक्सरसाइज में भी गिवन है, अपने आप बना सकते हैं, उससे आप बनाएंगे एग्जाम पे भी सोचेंगे क्या डोमेन रेंज हो सकता है। ऐसे ही इन्होंने आगे फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स में बनाया हुआ है सिमिलरली, तो ये तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स थे, अगर मैं फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स ले लूं, सपोज w इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, it is a function, now it's a function of 3 variable, you can see I want to find what is the domain and what is the range, so domain you know again, because x y z, बताओ क्या करूं मैं, Real. any real Real number, sir. X cube. Yes sir. क्यों, अगर नेगेटिव लिया तो क्योंकि क्या सर होगा, positive में स्क्वायर है ना सर। स्क्वायर से हाँ infinity. यस, क्योंकि स्क्वायर है तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो आई कैन से एंटायर स्पेस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंटायर स्पेस, एंटायर स्पेस, स्पेस क्योंकि जैसे ही आप 3 डायमेंशन में गए हम स्पेस कहते हैं उसे, या यू कैन से R3, पूरा R3 इसका डोमेन है, R3 का कोई पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट रख रहे हैं आप तो स्पेस हो गया, 2 पॉइंट रखते हैं तो क्या होता है वो प्लेन, इसको R2 को मैं लिख सकता हूँ एंटायर प्लेन, क्योंकि R2 था, है ना, एंटायर प्लेन इसका डोमेन, R2 एंटायर, R3 एंटायर स्पेस, रेंज क्या होगी बताइए, Non-negative. यस नॉन नेगेटिव, Non-negative. रेंज वही आपको मालूम है क्योंकि स्क्वायर रूट है तो नेगेटिव तो होगा नहीं कभी, ठीक है, यस। अच्छा ये बताइए जरा ध्यान से आप, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका डोमेन R minus 0. R3 पे है ना, पूरा R3 Real minus एक्सेप्ट
एक्सेप्ट क्योंकि प्लस है Zero. प्रोडक्ट नहीं है तो एक साथ जीरो नहीं हो, है ना? यस सर, एक तो एक साथ जीरो कब नहीं होंगे ये? एक साथ जीरो x x y से तो 0 0 zero. 0 हाँ मतलब कि Origin. ओरिजिन, अगर ओरिजिन रिमूव कर दूं मैं, है ना, ओरिजिन रिमूव कर दें तो ये- इट इज डिफाइंड एवरीवेयर, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है ये फ्रैक्शन सम है। प्रोडक्ट होता तो फिर हमें एक्सेस भी रिमूव करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर सम है तो ओरिजिन रिमूव कर दें तो इट विल बी ऑलवेज डिफाइंड, है ना? व्हाट अबाउट रेंज? R minus 0 है सर. आर माइनस जीरो निगेटिव हो सकता है क्या कभी? ये 0 से इनफाइनाइट No सर, negative नहीं नेगेटिवली होगी. पॉजिटिव ही होगा स्क्वायर है ना तो नेगेटिव नहीं होगा ही, तो इसलिए जीरो कॉमा All. इन्फिनिटी। Fine. जीरो भी नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन में तो जीरो टेंड नहीं करता है ना, टेंड इनटू जीरो होगा, ध्यान रखो। एक्स वाई जेड विल बी वेरी लार्ज, इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, तो जीरो पे ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं होगा। ठीक, अच्छा ये वाला बताइए, देखिए W इज इक्वल टू एक्स वाई एल एन जेड। एल एन है लॉग, एल एन का मतलब बेस ई होता है तो एल एन जेड होता है, अगर बेस 10 है तो हम लॉग जेड लिख देते हैं ना, एल एन जेड है। इसका बताओ आपको क्या नाम है, डोमेन कहाँ होगा? व्हाट इज द डोमेन? सर एक्स वाई का प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए और z 1 नहीं होना चाहिए। नहीं, एक्स वाई प्रोडक्ट Z अगर जीरो 0 हो से गया तो बड़ा क्या हो प्रॉब्लम है? फ्रैक्शन कोई है? Z सर जीरो ना हो। सर z 0 से बड़ा हो जेड नेगेटिव भी तो ना हो भाई। लॉग एक्स का डोमेन Yes, क्या sir. होता है? Positive sir. लॉग एक्स All क्या होता positive. है? एक्स पढ़ा होगा आपने, है ना? देखिए यहाँ Yes, पर जो sir. है All लॉग positive. जेड है, तो एक्स वाई से तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एक्स वाई तो आपका सिंपल पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो हमेशा डिफाइन होते हैं हर जगह, तो एक्स वाई से तो प्रॉब्लम है नहीं हमें। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कहाँ प्रॉब्लम कर सकता है। तो लॉग जेड को हमें पता है कि लॉग जेड इज डिफाइंड व्हेन जेड इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? हाफ स्पेस। हाफ स्पेस क्या? हाफ स्पेस मीन्स जेड ग्रेटर देन जीरो। देखो जेड ग्रेटर देन जीरो हाफ स्पेस होगा आपका जब आप बनाएंगे इसकी फिगर, है ना, ऐसे। तो ये आपकी अगर जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड ग्रेटर देन जीरो का मतलब कौन सा आएगा पार्ट? ये ऊपर वाला पूरा आ जाएगा, है ना, अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, यही तो है। तो इसे हम क्या कहेंगे? Yes. आपका हाफ स्पेस ऊपर का पूरा पोर्शन है जेड ग्रेटर देन जीरो। तो आप ये भी लिख सकते हैं जेड ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स वाई से वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक्स वाई इज ऑलवेज डिफाइंड एवरीवेयर बिकॉज सिंपल है प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर ये 1/x वाई होता तो मुझे एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो ऑल ऐड करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक, रेंज बताइए, रेंज। सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सर लॉग Real की sir. यही होता है भाई इससे जो भी नंबर निकल के आए हमें, लेकिन एक्स वाई तो कुछ भी हो पॉजिटिव सकता है, मिलेगा। तो हमेशा क्या हुआ? एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज एनी वेरिएबल, एनी वैल्यू, तो इट विल बी व्हाट? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, Plus है ना? L. कोई भी रियल नंबर आ सकता है, यानी कि यू कैन से एनी रियल नंबर, क्योंकि लॉग जेड जब आप निकालेंगे तो ये तो आपका कुछ भी आ सकता है, ये भी कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। 1/2 हुआ तो माइनस फ्रैक्शन हो जाएगा, 2 हुआ तो कुछ वैल्यूज आ जाएगी। एक्स वाई से प्रोडक्ट करेंगे तो ये और फिर चेंज होता है। तो ये आपके फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स में एक डोमेन और रेंज था। इसी तरीके से आप और अपने आप ट्राई कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव, yes, we have some definitions of interior point. So these are the very basic definitions which are I'm going to define, and I will be using these definitions for defining some other definitions, limit and continuity and so many things. So, please be muted, keep mute your mics. The first definition I'm taking interior point, interior point, interior point. ये definitions आपके आती हैं when you have function of more than one variable. Interior point, वैसे इंटीरियर से बात समझ में आ रही है कि सपोज यू हैव सम डोमेन, है ना, एक डोमेन हमारा डिफाइन है। ये फिगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि डोमेन तो आपका कुछ भी हो सकता है ना,
तो मैं डोमेन को R2 तो नहीं बनाऊंगा। अगर इफ आई एम टेकिंग फंक्शन ऑफ, आई विल बी डिफाइनिंग दिस थिंग फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो सपोज ये आपका एक डोमेन है। भाई डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स। ये सब डोमेन थे आपके। तो डोमेन कुछ भी आ सकता है, पूरा R3 आ सकता है, कुछ ये हो सकता है। तो हमने एक जनरल फिगर, तो डोमेन के अंदर आपका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? जो इसके अंदर आ रहा होगा, ये तो होगा। जो पॉइंट इसके अंदर है, यहाँ 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 तक भी जो है, ये सब अंदर है। इसको मैथमेटिकली इंटीरियर का मतलब समझ में आता है अंदर। जैसे इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम, तो अगर मैं आपके रूम को एक डोमेन बना दूं, तो जो रूम के अंदर है वो सब इंटीरियर टू द रूम है ना, इनसाइड द हाउस। तो इसे अगर मैथमेटिकली लिखें, तो मैथमेटिकली आई विल से अ पॉइंट, सपोज आई एम टेकिंग x0, y0, कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। जब x0 y0 लिख रहे हैं तो एक पॉइंट हो गया पर्टिकुलर, और अगर xy लिख रहा हूं मैं तो इट मीन्स इट्स अ जनरल पॉइंट xy। x0 y0 इज सम पॉइंट, अ पॉइंट इन अ रीजन, रीजन या सेट कह दें, अ पॉइंट इन अ रीजन इन द xy प्लेन। रीजन हम r से अगर नोट करें, इन द रीजन, ये r से रियल नंबर नहीं है, रीजन को r से नोट कर रहे हैं। जब मैं रियल नंबर लिखूंगा तो वो ऐसे लिखूंगा r n, रीजन को r से नोट कर दिया r, ठीक है। इन अ रीजन r इन द xy प्लेन is an interior point, is an interior point of R, इस रीजन R का। वैसे मैं R से नोट कर रहा हूँ सपोज। कब? अब यहाँ से डेफिनेशन देखो स्टार्ट होती है। डेफिनेशन देखिए सारी लिखी हुई है, यू कैन फाइंड इन बुक, बट आई एम एक्सप्लेनिंग, तो यू जस्ट listen it and understand it carefully. So when, if it is a, अब ये मैथमेटिकल टर्म आई एम राइटिंग इन मैथमेटिकल, if it is the center of a disk, of a disk, center of a disk, disk क्या होती है पता है भाई किसी को? disk, center of a disk, सर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पड़ी थी। अब क्या है और डिस्क? क्या है? सर एक सर सर्कुलर टू बॉडी होती है। डायमेंशनल सर्कुलर शेप होती है। हाँ देखो, आपने सर्किल, अगर मैं किसी पॉइंट x0 y0 को लेके सर्किल बनाता हूँ सर्किल, तो आप एक ऐसे सर्किल ड्रॉ कर देंगे, है ना। ये तो सर्किल का मतलब क्या है कि यू हैव सिर्फ बाउंड्रीज, बीच में क्या है, ये ब्लैंक है ना, सिर्फ ये है। जैसे आप सर्किल ले, यस सर। हाँ, कोई वायर लीजिए, वायर, और वायर को गोल मोड़ दो ऐसे, तो वो वायर क्या होगा? सर्किल होगा, बीच में क्या होगा? स्पेस ब्लैंक होगा। एम्प्टी सर ब्लैंक हाँ होगा। सर वो जैसे तो अगर रिंग हो जाएगा ना सर, है, हाँ रिंग। हाँ रिंग कह रहे, रिंग है, बैंगल है, चूड़ी को अगर आप देखें ऐसे, तो सर्किल ही तो बोल रहा हूँ ना मैं। तो इसको यस अगर आप सर। देखेंगे, है ना, इसको अगर मैं मान लो कि सेंटर x0 y0 है, तो ये आपका सर्किल है। तो इसमें सारे पॉइंट्स कौन से हैं? जो आपके ये सिर्फ बाउंड्री पर है, अंदर कुछ नहीं होता। ओके, अगर मैं इसे सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ, सपोज के आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ सेट, कि आपकी इसमें ये रेडियस r है, तो सर्किल में कौन से पॉइंट्स आएंगे? तो यू विल से ऑल एक्स वाई इज सच दैट, अगर सेंटर मान लो इसका x0 y0 है, सच दैट x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 होल स्क्वायर इज लेस देन r, सॉरी इक्वल टू r, है ना। वो सारे पॉइंट्स जो इसके, इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। हाँ लिख देता हूँ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सारे पॉइंट्स आपके सर्किल के होंगे, ये तो होंगे। तो ये कहाँ होंगे सारे पॉइंट्स? यहाँ आएंगे। लेकिन अगर मैं यस डिस्क सर लूंगा, बहुत। डिस्क में आई विल टेक तो अंदर भी अंदर भी। तो ये इनर डिस्क का मतलब क्या है? ये अब डिस्क आपकी एक सॉलिड फिगर है, बीच में स्पेस नहीं, यहाँ पर ब्लैंक नहीं है। अब ये डिस्क है, जैसे आपने डिस्क देखी होंगी, जो डिस्क आती है, इसीलिए डिस्क का नाम है। डिस्क में बीच में क्या होता है? ब्लैंक होता है, जो आप कंप्यूटर में डालते हैं। तो डिस्क की नो इक्वेशन सर। क्या हो जाएगी? ये तो आपकी है सर्किल। अगर मैं डिस्क लिखूंगा, तो डिस्क विल बी
correction of all X and xy is such that x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square less than equal to r. R. ये लेस देन इक्वल टू मतलब ये सारे भी हैं और बाउंड्री भी है. ओके, ये डिस्क है. So what I'm saying, a point in a region in the xy plane is an interior point of R if it is the center of a disk of positive radius that lies entirely word भी important है. that lies, that मतलब डिस्क जो है पूरी की पूरी entirely disk, the whole disk in R मतलब region R ना, in R मतलब कि अगर आपके पास कोई ये एक रीजन है तो पॉइंट कब होगा कि आपके पास आप कोई भी पॉइंट ले लें, जब भी उसको एक डिस्क बनाए उस पॉइंट को सेंटर बना के, तो वो डिस्क क्या होनी चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटली इनसाइड आर. ओके, मैं यहाँ पर बिल्कुल एक पॉइंट बिल्कुल क्लोज टू दिस वॉल ले लूँ, यहाँ पे बिल्कुल क्लोज में ले लूँ, क्लोज पे, तो अब भी आई हैव, क्योंकि पॉजिटिव आर की चॉइस मेरे हाथ में है, पॉजिटिव रेडियस, तो मैं एक स्मॉल रेडियस की डिस्क बना सकता हूँ. पर इतनी बड़ी कोई बना ली कि बाहर आ गई है ना. तो रेडियस तो आई कैन चूज एनी रेडियस, तो आई विल चूज वेरी स्मॉल रेडियस, तो ये इसके अंदर आ जाएगा. समझ में आई बात नहीं? तो व्हाट विल हैपन कि अ पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट कब होगा कि यू कैन ऑलवेज एबल टू ड्रॉ अ डिस्क ऑफ पॉजिटिव रेडियस व्हिच इज लाइंग एंटायरली इन आर. अब आप ये एक सवाल कर सकते हैं कि सर अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आ जाए इस लाइन के ऊपर तो क्या होगा, बताओ. अब अगर मैं डिस्क ले लूं, कितनी भी स्मॉल रेडियस की डिस्क ले लूं, क्या वो हमेशा अंदर आ जाएगी अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर आ गया? पॉसिबल है? नहीं सर. अगर इससे अंदर है, यहाँ पर कितना ही क्लोज हो जाए इसके, हमेशा मैं स्मॉल रेडियस की डिस्क चूज कर सकता हूँ, है ना, बहुत स्मॉल रेडियस की. लेकिन जैसे ही पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा रीजन के, अब आप कितनी स्मॉलेस्ट रेडियस की डिस्क ले लें, वो हमेशा क्या होगा, एंटायर डिस्क नहीं आएगी, है ना. यस यस. हाँ, जैसे आप कमरे में बैठे में, अगर आप कमरे के अंदर कितने पॉइंट ले लें आप डिस्क बनाएंगे आ जाएगी. लेकिन जैसे आप वॉल के ऊपर डिस्क लेंगे, वॉल के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे, तो वॉल के ऊपर पॉइंट लेके जब आप डिस्क बनाएंगे तो कुछ वॉल के अंदर का हिस्सा आएगा, कुछ बाहर का. तो इससे क्या पता चला कि कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे कि एंटायर डिस्क नहीं आएगी, डिस्क में कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे इनसाइड, कुछ आ रहे होंगे आउटसाइड. उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर. हैं बताओ. ये क्या है, किसी भी रीजन या किसी भी चीज की कुछ आप क्या ड्रॉ कर देते हैं कि बाउंड्री. The boundary point. बाउंड्री है ना, यस. भाई बाउंड्री होती है, क्रिकेट में खेलते हैं आप बाउंड्री, कि अगर बाउंड्री के अंदर है तो चौका है, बाहर गया तो फिर वो बाहर गई तो चौका है, अंदर रही तो आप रन, है ना. तो इसके अलावा जब भी हम रीजन डिफाइन करेंगे हमें एक बाउंड्री लगानी पड़ेगी उस पे. तो बाउंड्री जब आप लगाएंगे तभी एक्चुअली इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट का कंसेप्ट आएगा. अगर बाउंड्री नहीं है तो फिर कोई इंटीरियर, हर